Dear students of class 10th, today we will solve numericals. Chapter 1. Focal length of a convex mirror is 50 centimeter. What is its radius of curvature? Students, we have given focal length of a convex mirror. Focal length of a convex mirror, small f equal to minus 50 centimeter. Convex lens 50 centimeter. Then radius of curvature capital R equal to 2f. Then R equal to 2 into 50 centimeter equal to 100 centimeter. This is the answer. And next question number 2. The radius of curvature of a convex mirror is 25 centimeter. Radius of curvature of a convex mirror is 25 centimeter. Then what is its focal length? Given that radius of curvature capital R equal to 25 centimeter, then focal length small f equal to R by 2 equal to 25 by 2 equal to 12.5 centimeter. This is the answer. Very simple problem. And question number 3. A concave mirror
concave mirror produces 10 centimeter long image of an object of height 2 centimeter then what is the magnification produced? We have given solution. 10 centimeter long image means height of image h2 equal to, since this length mirror is concave mirror, therefore image will inverted but real, so height of image will negative minus 10 centimeter. But it may be positive also, because magnification is so high and height of object h1 equal to 2 centimeter. Therefore magnification m equal to h2 by h1 equal to 10 by 2 equal to plus minus 5 centimeter. Here it is not confirmed that where image will fall, so magnification may be positive and negative. Now next problem. And question number 4. An object 1 centimeter high, an object 1 centimeter high is held near a concave mirror of magnification 10
Then how tall will be the image? How tall will be the image? Height of object equal to 1 centimeter, and it is denoted by h1 equal to 1 centimeter, and magnification m equal to plus minus 10. Then we need to find out height of image h2. Since we know that m equal to h2 by h1 equal to, now 10 equal to h2 by 1 centimeter, it implies that h2 equal to 1 into 10 centimeter. It is answer. Students, numerical of physics are not very large. Only few numericals have large solution or lengthy solution, but maximum numericals have short solution. Question number 5. Find the size. Find the size. Find the size, nature and position of image formed by a concave mirror which produces 3 centimeter high, 3 centimeter this question when an object of 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter. Given focal length of mirror
mirror is 10 centimeter. First note down the given data from question and then find out answer solution. Find the size, nature and position. यानी हमें क्या फाइंड करना है कि इमेज की साइज क्या होगी, उसकी नेचर कैसा हो. नेचर होने का मतलब क्या, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, कैसा होगा. पोजीशन क्या होगी, बनेगा कहाँ वो इमेज. और मिरर कैसा, हमारा कॉनकेव मिरर है. कॉनकेव मिरर में एक ही प्लेस ऐसा है कि हमारी इमेज जो है वर्चुअल इमेज होती है और इरेक्ट होती. वो है कि जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं. अदरवाइज जितनी भी सारी कंडीशंस हैं उसमें सब में इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती है. तो ये तो हमें पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ गया है. तो आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. फोकल लेंथ दी गई है और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा रहा है ये भी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर. बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. तो u की वैल्यू क्या होगी, हमेशा u ऑलवेज नेगेटिव. एंड फोकल लेंथ f इक्वल टू 10 centimeter. Then use formula. We know that 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u. Then 1 by 10 equal to 1 by v minus 1 by 15. Then focal length also negative. फोकल लेंथ भी निगेटिव होती है तो इसकी वैल्यू -10 लिखी जाएगी. एंड -1 by 10 plus 1 by 15 equal to 1 by v. Take LCM. 30 minus 3 plus 2 equal to 1 by v. Then 1 by 30 minus 1 by 30 equal to 1 by v. यानी v equal to -30 सेंटीमीटर. -30 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या हुआ कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा जो है इमेज बनेगी. और इमेज कैसी होगी, इमेज भी उसी तरह बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट होगा. निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इमेज की कंडीशन कहाँ होगी, उसकी पोजीशन कहाँ होगी. इमेज की पोजीशन हमारी 30 सेंटीमीटर दे रहा है. यहाँ पर फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट हमारा फोकल लेंथ से और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रखा गया है. फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है. इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 20 सेंटीमीटर है. क्यों, क्योंकि 2 twice ऑफ फोकल लेंथ विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर. इसका मतलब हुआ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है.
तो अब देखा जाए यहाँ तो दे रहा आंसर कि 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसके इधर पीछे बनेगी इमेज जो है। अगर हम इसको डायग्राम ड्रा करें तो हमारी ये बात क्लियर हो जाएगी यहाँ पर ज्यादा। अच्छा, दूसरी बात अब ये फाइंड आउट करना हो कि हाइट क्या होगी, इमेज की हाइट क्या होगी। व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज। अभी तक हम लोगों ने तो फाइंड कर लिया, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है नेचर, साइज पहले पूछी गई है पहली बात जो है। तो साइज ऑफ इमेज h2 by h1 इक्वल टू v by u, h2 अपॉन h1 इक्वल टू v by u, वो भी माइनस साइन के साथ, माइनस v by u। एंड h2 की वैल्यू क्या है पता नहीं है, कितना दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जबकि 1 सेंटीमीटर का है, माइनस 30 और रखा गया है 15 सेंटीमीटर की, उस पर जो है डिवाइड कर लेंगे, क्या मिलेगा h2 बाई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू पॉजिटिव 2, देन h2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, h2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हमारा मैग्नीफाई हो जाएगा, मैग्नीफाई होगा, यानी इमेज की हाइट क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसकी जस्ट डबल होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल डबल ऑफ द इमेज। एंड तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ये दिखा रहा है कि h1 हमारा जो है पॉजिटिव है, तो अब h2 की वैल्यू मिल गई हमें। वैसे देखा जाए तो रियल और इन्वर्टेड में हो तो h2 की वैल्यू भी निगेटिव मिलेगी, क्योंकि ये जो चीज हमारी है ये भी निगेटिव है, h2 इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज विल रियल एंड inverted and the image will form at 30 centimeter distance from the pole of the mirror. So students, solve such problems and next problem, एक दूसरी प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर। Question number 6. An object 2 centimeter high. An object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror, concave mirror
which produces 3 centimeter high inverted image. Then what is the focal length of the mirror? What is the focal length of the mirror also find position of the mirror. Also find position of the image. Now solve solution. An object 2 centimeter high means height of the object. क्या मतलब हुआ कि हमें क्या डाटा मिला? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की हाइट को h1 से दिखाते हैं, इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर. मतलब क्या हो कि ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी कितनी है? तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर u इक्वल टू -16 सेंटीमीटर. माइनस क्या होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा जो है इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है और जो इंसिडेंट रेज है वो ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ चलती हैं. तो जो डिस्टेंस हमारी है वो हमेशा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर की जाती है, तो वो पॉजिटिव डिस्टेंस होती है. लेकिन हमें यहाँ जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है या इमेज की दूरी होती है वो मिरर के पोल से मेजर करते हैं. मिरर के पोल से करेंगे जो है, तो इस तरह से क्या हो जाता है? वो निगेटिव हो जाता है. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड विच प्रोड्यूसेस 3 सेंटीमीटर हाई इनवर्टेड इमेज. तो हाइट ऑफ इमेज equal to -3 centimeter. Why -3 centimeter? Because given that image is inverted, मतलब उल्टी इमेज बनी है. इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जब बनेगी तो नेगेटिव हो जाएगी. और हमारे पास u दिया हुआ है तो हम v फाइंड आउट कर सकते हैं. We know that h2 by h1 equal to -v by u. तो h2 की वैल्यू है -3/2 इक्वल टू सेंटीमीटर कैंसिल आउट -v/-16 सेंटीमीटर. क्योंकि अब दोनों निगेटिव हैं तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. ये अब आते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई. -3 into 16 इक्वल टू 2v. -3 into 16 क्या हो जाएगा? -48 सेंटीमीटर बाई 2 इक्वल टू v. तो v इक्वल टू हो गया -24 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या हुआ कि जिधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ हमारा जो है इमेज भी फॉर्म होगी. तो पहला क्वेश्चन पूछा था हम लोग से कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. तो अब हमारे पास v हो गया, u हो गया, हम लोग फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बहुत ही सिंपल सा है.
focal length of the mirror focal length of the mirror 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u. 1 by f equal to 1 upon -24 प्लस माइनस यहाँ रखेंगे -16, तो एलसीएम आएगा 48. 1 by f equal to 48 -2 -3 इक्वल टू हो जाएगा, तो क्या मिला 1 by f इक्वल टू -5 by 48. तो और इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे, तो डेसिमल में वैल्यू आएगी और f इक्वल टू हो जाएगा 48 by -5 -9.6 सेंटीमीटर. इट इज फोकल लेंथ. और पूछा था क्या होगा कि फोकल लेंथ निकल गया हम लोगों का. आल्सो फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज. इमेज की पोजीशन क्या होगी. इमेज का मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ हमारी 9.6 है. अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर लेंगे तो आएगा 19.2 सेंटीमीटर. और 19.2 कहाँ बन रहा है, ये इमेज जो बन रही है वो एकदम रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और जो है लेफ्ट साइड में जाएगी इमेज. तो ये है इमेज की पोजीशन हमारी. इमेज की पोजीशन क्या वो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. तो नाउ टुडेज वीडियो इज ओवर. Students, you are requested to solve similar problems. Okay, thank you.